So when we are talking about operating system is also a software. ठीक है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है. बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल, फर्स्टली लेट्स सी व्हाट एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज. सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं पहले. सो here, moving on, we have two types of softwares. ब्रॉडली हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं. द वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अदर वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? दो कैटेगरीज हैं हमारे पास. वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द अदर वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो जस्ट कंफर्म मी, मेरी स्लाइड्स आपको विजिबल हैं सबको? गुरदीप, सॉरी गुनदीप, just unmute yourself and confirm me. Yes, ma'am. All right. Visible. Thank you. So, moving on to next, what actually a system software is. So, system software is basically a set of programs that control and manage the operations of computer hardware. It also helps application programs to execute correctly. आपका सिस्टम जब भी बूट अप होता है, आप स्विच ऑन करते हो सिस्टम को, कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ बूट अप होता है, ठीक है. तो वो जो बूटिंग अप है, वो जो प्रोसेस है, वो कौन देखता है? वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर देखता है. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर होता है जो बाकी सॉफ्टवेयर्स को चलने में हेल्प करता है, इनिशिएट करता है, ठीक है. So system software here is designed to control the operations and extend the processing functionality of a computer system. System software makes the operation of a computer more fast, efficient and secure. So when we are talking about system software, it is typically a computer program in general. It is a kind of software program that is designed to run computers hardware. आप ड्राइवर्स की बात करते हो, बायोस की बात करते हो, बूट प्रोग्राम्स की बात करते हो. तो ये जो प्रोग्राम्स हैं आपके, ये इनिशिएट कौन करता है? दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है. सो एक्चुअली हार्डवेयर को जो हेल्प करता है चलाने में, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड इफ वी थिंक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एज अ लेयर्ड मॉडल, so the system software is the interface between the hardware and the user application. We have let's say हमारे पास जो system model है, complete system model है, that is in layers. layers में है हमारे पास. तो hardware and the user application, इसके बीच में जो software है, that is the system software, जो bridge की तरह act करती है between user and the hardware. So they are termed as operating system, ठीक है. इन सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. और एंड दीज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द अदर प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर. Let's say taking an example of system software, we are having BIOS. BIOS termed as basic input output systems. So it gets the computer system started after you turn it on and manage the data flow between the operating system and it attached devices such as the hard disk, video adapters, keyboard, mouse, printer, any. So moving on to next, the other boot program is here we have is that we termed as the process booting. So boot program is required for booting process which loads the operating system into the computer's main memory or random access memory. All right.
Apart from this, an assembler is required. It takes basic computer instructions and converts them into a pattern of bits that the computer's processor can use to perform its basic operations. So all these tasks are of assembler, and assembler is what? It is again a computer program, a software program that actually instructs the other operations to perform, and it works for processor only. Apart from this, we have device drivers. हम ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं. सो एक्चुअली ड्राइवर्स जब इंस्टॉल करते हैं वो क्या है? दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स. ठीक है, जो एज अ जो कॉन्फ़िगर करते हैं आपके सिस्टम को ड्राइवर्स के साथ, ड्राइवर्स को आपके सिस्टम के साथ. तो सिस्टम और ड्राइवर्स की जब भी हम लाइक सीडी ड्राइव है या प्रिंटर है, तो उनको आप जब भी असेस करना चाहते हो अपने सिस्टम के साथ, आपको पहले उनके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं. ड्राइवर्स जो है सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं, उनको बताते हैं कि ये वाला सिस्टम है, ये इंस्ट्रक्शंस इस तरह से फॉलो होंगी, तो उनके बारे में जो भी बताता है उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, वो सारा काम डिवाइस ड्राइवर्स करते हैं. So they controls a particular type of device that is attached to your computer, such as keyboard or a mouse. The driver program converts the more general input-output instructions of the operating system to manage the device's type and understand. So it is making your system to understand the external device that is being connected to it. So apart from this, we have compilers and debuggers as well, and we'll be discussing more details about them in the next session. And coming on to next, we have various types of system softwares. So the various types of system softwares are as in operating system. Operating system here helps you to efficiently utilize all the hardware and software components of your computer. So यूजर्स में और हार्डवेयर में जो इंटरमीडिएटरी ब्रिज है, जो इंटरैक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. और ये कैसे करता है, ये किस तरह क्या क्या चीजें मैनेज करता है, वही हम इस पूरे सब्जेक्ट में, इस पूरे कोर्स में करने वाले हैं. फाइन. तो अपकमिंग सेशंस में हम ज़्यादा डिटेल में करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, द अदर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वी आर हैविंग इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. It performs the instructions prepared by developers in a programming language into a form that can be interpreted or compiled and executed by computer system. तो हम हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज करते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज क्या आती है? जो यूजर फ्रेंडली होती है, जिसको हम समझ सकते हैं, कुछ लिखी हुई है इंस्ट्रक्शंस, वो हम पढ़ पा रहे हैं, रीडेबल है वो. So they are understandable to us as a user. So they are termed as high level language. Then we talk about low level language, which are system oriented, जो सिस्टम समझ सकता है. बाइनरी कोड्स, हेक्साडेसिमल कोड्स, सो दे आर ASCII कोड्स. सो जो सिस्टम फ्रेंडली है, सिस्टम जिनको इजीली समझ पा रहा है, हो सकता है उन इंस्ट्रक्शंस को, उन इनकोडेड इन कोड्स को हम ना समझ पाए, पर सिस्टम समझ पा रहा है. सो दे आर टर्म्ड एज लो लेवल लैंग्वेज. तो ट्रांसलेटर क्या होता है? इट इज अ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर. एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि सिस्टम उनको समझ सके और उसको कंपाइल और एग्जीक्यूट कर सके. And similarly, vice versa can be done. They may convert the system language or low level language to high level language. So these are all the system softwares. The third type we are having is communication softwares. Communication software allows us to transfer data and programs from one computer system to another. तो हमारे पास दो सिस्टम्स में कोई ना कोई कनेक्टिविटी है, कोई मीडियम है जिससे कि हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं एक डिवाइस को, एक प्रोग्राम को एक सिस्टम डिवाइस से दूसरे सिस्टम में. तो उन सॉफ्टवेयर को जो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, डेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं,
उनको हम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर हम नेटवर्किंग के थ्रू भी डिवाइसेस में को कनेक्ट कर पा रहे हैं और उनको शेयर कर पा रहे हैं, सो दैट विल आल्सो बी ब्रिज्ड बाय कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर. So next we are having is the fourth type we are having is utility programs. Utility programs क्या होते हैं? Basically utility programs are the set of programs that help users in system maintenance tasks. ठीक है, सिस्टम को मेंटेन करना है. सिस्टम मेंटेनेंस एज इन आपके पास कुछ मेमोरी स्पेस है, कब किस डेटा को कौन सा मेमोरी स्लॉट अवेल करना है, कहाँ से डेटा कहाँ ट्रांसफर करना है और उस स्पेस को कब फ्री करना है ताकि उसमें कोई और डेटा सेव हो सके. प्लस सीपीयू यूटिलाइजेशंस की हम बात करते हैं, हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं. एक ही सिस्टम पे एक ही टाइम पे हम मल्टीपल टास्क कर सकते हैं. लेट्स से हम साइड बाय साइड सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, इंटरनेट सर्फिंग भी कर रहे हैं और लेट्स से हम चैटिंग भी कर रहे हैं साइड बाय साइड. सो मल्टीटास्किंग सिनेरियो में मल्टी प्रोसेसिंग एंड सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात होती है. ये सारे कंसेप्ट्स जो है हम बहुत डिटेल में इस कोर्स में करने वाले हैं. तो दे ऑल कम्स अंडर यूटिलिटी प्रोग्राम्स. तो ये सारे टास्क जो है हेल्प करने में कौन से सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम. तो ये किस तरह होते हैं ये हम आने वाले सेशंस में अभी करेंगे डिस्कस. So next we are having is features of system software. So moving on to next, the features of system software. The first feature of a particular system software lies in it is closer to the system. System softwares are more closer to system because they are helping the system to organize and to coordinate with user. मैंने पहले भी बताया कि अगर हम ये बोलें कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम लेयर्स में है अवेलेबल, हमारे पास सबसे पहले कर्नल आ जाता है, हमारा सिस्टम जो कोर सिस्टम है वो आ जाता है, हार्डवेयर डिवाइसेस आ जाते हैं, उसके ऊपर एक लेयर है, एक ब्रिज, एक कोऑर्डिनेटर की तरह जो एक्ट करता है, दैट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसके ऊपर यूजर्स आ जाते हैं. तो इंटरमीडिएटरी जो है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और वो कोऑर्डिनेट करवाते हैं सिस्टम को. दे आर मोर क्लोजर टू योर सिस्टम्स. The other feature lies here is they are generally written in low level language. ये उस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो सिस्टम फ्रेंडली हो, नॉट द यूजर फ्रेंडली. हम उनको समझ नहीं पाते हैं बट सिस्टम समझ पाते हैं. देन दे आर फास्ट इन स्पीड. इनकी एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम्स की बहुत फास्ट होती हैं. दे आर लेस इंटरैक्टिव. जैसे आपने बूट अप प्रोग्राम चलाया, इनिशियली जब सिस्टम ऑन करते हैं बूट प्रोसेस ऑन होता है जो आपकी विंडोज को, आपके बाकी सॉफ्टवेयर को लोड करवाता है. तो उस केस में यूजर इंटरेक्शन नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली चलता जाता है. आप उनको गाइड नहीं करते हो मैन्युअली कि इसके बाद ये किया जाए या ये किया जाए. ठीक है, तो दे आर लेस इंटरेक्टिव विद यूजर्स. देन दे आर स्मॉलर इन साइज. इनको मेमोरी स्पेस बहुत कम चाहिए होती है, कम साइज के होते हैं. एंड दे आर हार्ड टू मैनिपुलेट. जो भी आपके इनिशिएटिव या बायोस बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स के जो प्रोग्राम्स हैं, हम उनको एडिट नहीं कर सकते हैं. हम उनको यूज जरूर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, बट मैनिपुलेट नहीं करते. इनको डिफाइन कौन करता है, कौन इनको राइट करता है? एक्चुअली द मैन्युफैक्चरर. जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं उनको मैन्युफैक्चरर ने जब भी, जिसने भी वो ड्राइवर्स बनाए हैं, वो डिवाइसेस बनाए हैं, उन्होंने एक बार उसकी प्रोग्रामिंग कर दी. आप उनको यूज कर सकते हो कभी भी कहीं भी, बट उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते. So these are the few features of system software. Then moving on to application software. The second type of software we are having is application software, and how application software are different from system software.
Application software is a program that does real work for user. It is mostly created to perform a specific task for a user. Fine. So application software act as an intermediator between end user and the system software. So it is more close to user. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? जैसे आप वर्ड प्रोसेसर्स यूज करते हो, पीपीटीज बनाते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, एक पर्टिकुलर आपका टास्क करने के लिए ही बनाए गए हैं. आप MP3 प्लेयर्स यूज करते हो, सो दैट इज अ सॉफ्टवेयर जो MP3 फाइल्स को एग्जीक्यूट करता है, प्ले करता है, आपको गाने सुनाई देते हैं उससे. ठीक है. सो दिस इज मोर ऑफ टास्क सेंट्रिक सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर टास्क करने में आपको हेल्प करते हैं. दे आर टर्म्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी आर हैविंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स. लाइक दिस वी आर हैविंग वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो मैंने अभी आपको बताया है. इट makes you for use of a computer for creating, modifying, viewing, storing, retrieving and printing the documents. They are word processing softwares. Apart from this, we are having spreadsheet softwares. Spreadsheet software is a numeric data analysis tool that allows you to create a computerized ledger. स्प्रेडशीट पे, एक्सेल पे सबने काम किया होगा, तो वो उसमें हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं. तो जो न्यूमेरिक एनालिसिस पे हेल्प करता है, दैट इज टर्म्ड एज योर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स. Apart from this, we are having database softwares. A database software is basically a collection of related data that is stored and retrieved according to user demand. जहाँ पे हम डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, वहां से उस स्टोरेज स्पेस से डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे भी यूजर को चाहिए. सो ये सारे जो चीजें हैं ये कोऑर्डिनेट करता है DBA, दैट इज द डेटाबेस softwares. Then we have graphic softwares. It allows computer systems for creating, editing, drawing and graphs. ठीक है. आपने कुछ भी एनिमेशंस या इमेजेस पे काम करना है, सो ये आपको कौन प्रोवाइड करता है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर. जैसे फोटोशॉप है, डाइजेस्ट है, कोरल ड्रॉ है. दीज ऑल आर द सॉफ्टवेयर्स, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स जो आपको अलाउ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इमेज एनिमेशंस पे काम करने के लिए. Then we have education softwares. Education softwares allows a computer to be used as a learning and teaching tool. तो एजुकेशन सॉफ्टवेयर में अभी जैसे हम एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं जूम ऐप. तो जूम ऐप इज व्हाट? इट इज अगेन इंटरैक्टिव मीटिंग ऐप. ठीक है. जिससे कि हम एजुकेशन एनहांस कर रहे हैं. हम कोलैबोरेटिवली काफी स्टूडेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं. स्टूडेंट्स जो है 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं टीचर्स के साथ. एंड वी आर प्रोसेसिंग इनटू अ टीचिंग सॉफ्टवेयर. अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से यू आर हैविंग फ्यू वीडियोज. जो वीडियोस आप देख रहे हो, सो वो वीडियोस प्ले करने में कौन हेल्प करता है? अगेन योर एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स. कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो वीडियोस को प्ले कर रहे हैं, जहां से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो. ठीक है. देन वी हैव इज एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स. एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स, दिस टाइप ऑफ एप्स अलाउज कंप्यूटर्स टू बी यूज्ड एज एन एंटरटेनमेंट टूल. लेट्स से आप एंटरटेनमेंट्स के लिए MP4 वीडियोस प्ले करते हो, देन MP3s प्ले करते हो, सॉन्ग सुनते हो, मूवीज देखते हो. ये सारी चीजें क्या है? दे कम्स अंडर योर एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर. एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ही है जो ये आपकी वीडियोस, ऑडियोस चलाता है. Then apart from this, we are having few features of application softwares, and these features are so it performs more specialized tasks. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक स्पेशल टास्क करने के लिए ही प्रोवाइड किए जाते हैं. जैसे अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करोगे, पीपीटीज बनानी है तो ऑफिस यूज करोगे. सो दे आर मोर स्पेशलाइज्ड टास्क.
ठीक है, नोट पैड्स हैं, विंडोज नोट पैड देती है टू एडिट, मॉडिफाई, रीड द टेक्स्ट, तो आप नोट पैड यूज करते हो। अगर आपने इमेजेस पे काम करना है, ग्राफिक्स पे काम करना है, यू हैव फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। अगर एनिमेशंस में काम करना है, यू हैव फ्लैश। देन आप पेंट भी यूज करते हो, दैट इज अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। आप कैलकुलेटर्स यूज करते हो, इट इज अगेन अ सॉफ्टवेयर जो आपको कैलकुलेशंस करके दे रहा है। then needs the application software, it needs more storage space। इनको कंपैरेटिवली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनके कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, ये हैवी होते हैं एंड इनको मेमोरी स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है। देन दे आर मोर इंटरैक्टिव एंड इजी टू यूज। इनको लाइक इंटरैक्टिव एज इन यूजर से ये बार बार प्रॉम्प्ट्स पूछते हैं कि इसके बाद ये करना है या नहीं, यूजर इंस्ट्रक्शंस इनको ज्यादा चाहिए होती हैं। जो आप इन सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्ट करोगे ये वही करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आप पेंट में भी काम करते हो या वर्ड ऑफिस में काम कर रहे हो, वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, आपके पास टूल्स हैं, उनकी प्रोग्रामिंग की हुई है, बट आप खुद से वो टूल्स यूज करते हो। आप बताओगे कि आपने ये फॉन्ट यूज करना है, ये फॉन्ट फैमिली यूज करनी है, ये साइज यूज करना है, इस तरह का बॉर्डर होना चाहिए, ये सारे स्पेसिफिकेशंस आप देते हो। फिर आप ही इंस्ट्रक्ट करते हो कि ये फाइल को सेव करना है, कहाँ सेव करना है, किस लोकेशन पे सेव करना है। अगर किसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है तो आप ओपन करते हो, उनको एडिट करते हो, तो सारे इंस्ट्रक्शंस जो है आप खुद देते हो। सो दे आर मोर इंटरैक्टिव एंड दे आर जनरली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो यूजर्स इजीली समझ सकते हैं। तो इसमें आ जाता है आपके पास लेट्स से सी हैश, डॉट नेट में लिखी जाती हैं, जावाज में लिखी जाती हैं, दे आर मोर यूजर फ्रेंडली। So here are few differences between system software and application software. So as we have already discussed, they are designed to manage, the system softwares are designed to manage the resources of system like memory, processes, management, security, etc. And application softwares, they are designed to fulfill the requirements of user for performing specific tasks. System softwares are written in low level language, where our applications softwares are written in high level language. Software starts running when systems is power on and they run until the system is powered off. But if we talk about application software, they start running when the user begin and it ends when user system चल रहा है या नहीं, that doesn't matter, अगर यूजर ने बंद कर दिया तो बंद हो जाएगा। Then system software is generally it is a general purpose software, but if we talk about application software, they are specific purpose software as we have discussed earlier. Then system software is they run independently, whereas application software they do not run independently because user interaction is required in it. Moreover, system software is independent of application software, and application software needs a system software. It depends on system software for its execution. Then system software is crucial for effective functioning of system, whereas application software is not extremely important for functioning of the system. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका सिस्टम चल ही नहीं पाएगा, आपका बूटअप ही नहीं हो पाएगा, विंडोज ही नहीं लोड हो पाएंगी। बट एप्लीकेशन प्रोग्राम है, अगर नहीं भी आया, सिर्फ ये कि आपका वो वाला एक पर्टिकुलर काम नहीं हो पाएगा, बाकी चीजें आप कर सकते हो, सिस्टम आपका चलेगा। इट विल नॉट हैम्पर योर सिस्टम एग्जीक्यूशन। ऑलराइट, so this is all about system and the type softwares and the types, system software and application software. So this is all for today's discussion.